In this short lecture, I will be explaining the meaning of the definition of consideration as given in the Contract Act 1872. The definition itself is quite complicated, but we can understand it quite simply by breaking it down into 4 parts. Okay, so by the way, I have already made a very detailed recording about this same topic. तो अगर आपको ये quick recording के through समझ नहीं आता, then you can always use that other recording जहाँ पे मैंने यही topic detail में explain किया है. So in part 1, we are basically trying to see what are the kinds of acts or actions that count as valid consideration in the eyes of the law. So as you can see, I have further divided part 1 into 3 parts. So basically there are 3 categories of consideration that we are looking at. सबसे पहले consideration can be an act and this is very simple, यानी कि आपका कोई एक action होगा which is going to obviously be of benefit to the promisor. Benefit होगा किसके लिए? प्रोमिसर ऑफरर के लिए, एंड आपके लिए वो एक्ट ज़ाहिरी बात है कोई ना कोई डेट्रीमेंट के फॉर्म में होगा. यानी कि फ़र्ज़ करें किसी से आपने बाइक ख़रीदी, तो जिसने आपको बाइक बेचने की ऑफ़र दी थी उसको आप कोई ना कोई पेमेंट करेंगे, तो दैट पेइंग इज़ बेसिकली योर एक्ट एंड दैट पेमेंट इज़ गोइंग टू बी डेट्रीमेंट फॉर यू, बट यू आर ऑब्वियसली गोइंग टू गेट द बाइक इन रिटर्न. बट कंसिडरेशन यहाँ पे क्या है? वो पेमेंट जो आप दे रहे हैं बाइक के बदले में, that is the consideration, and obviously the offerer or the promisor, though the person basically who is selling you the bike, उसको क्या benefit मिल रहा है? उसको वो payment मिल रही है. So in short, the first category, that is consideration can be an act, is very simple and straightforward, that is you are doing something. Okay, so in the second part it says that consideration may also be an abstinence or forbearance. देखिए, abstinence and forbearance mean more or less the same thing. So right now all you need to understand is कि ज़रूरी नहीं है कि consideration एक act या action के form में हो, यानी कि कुछ ना करना भी जो आप otherwise चाहते तो कर सकते थे, वो भी consideration valid होती है. So for example, अगर आपकी age 18 years है already, तो in most western countries you are free to start drinking and smoking and driving, बट लेट्स से कि आपके अंकल आपको प्रॉमिस करते हैं कि अगर आपने इवन आफ्टर 18 years यू डोंट स्टार्ट ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, तो इस सिचुएशन में अगर आप वाकई ऐसा करते हैं फॉर लेट्स से अप टिल द एज ऑफ 21 years, एंड इस सिचुएशन में अगर आपके अंकल ने आपको 1000 pounds प्रॉमिस किए हुए हैं, तो क्या ये वैलिड कंसिडरेशन होगी? Yes, बिल्कुल होगी, because an abstinence or forbearance simply means that you are abstaining from doing something, कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं. तो consideration ज़रूरी नहीं है कि किसी act के form में हो, कोई action करना ज़रूरी नहीं है, कुछ ना करना भी consideration की तरह count हो सकता है. So in short, the consideration does not necessarily have to be an act. ज़रूरी नहीं है कि consideration एक act हो. It can also be in the form of an abstinence, that is आप कुछ करने से abstain कर रहे हैं, you are foregoing some right that you are otherwise legally entitled to. तो otherwise आपका legal हक है. For example, if you are living in a foreign country where it is legal to drink, and presuming that there are no religious constraints either, कि आपको religion की तरफ से भी कोई पाबंदी नहीं है, तो आपका लीगल राइट है कि आप ड्रिंक कर सकते हैं, स्मोक कर सकते हैं आफ्टर यू टर्न 18 years old. तो इस सिचुएशन में इफ़ यू आर foregoing your legal right and you are not exercising the legal right which you are otherwise free to do, तो इस सिचुएशन में ये क्या होगा? इन एब्सटिनेंस, एंड एन एब्सटिनेंस या फिर इसको फॉरबेरेंस भी कहते हैं, इट्स वन एंड द सेम थिंग. तो ये भी वैलिड कंसिडरेशन होगी. ओके, आगे चलते हैं. तो ये तो क्लियर हो गया कि कंसिडरेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एन एक्ट और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एन एब्सटिनेंस, यानी कि नॉट डूइंग समथिंग और डूइंग समथिंग. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट नेसेसरी दैट द एक्ट और एब्सटिनेंस, डज इट हैव टू बी इन द प्रेजेंट और कैन इट बी समथिंग रिलेटिंग टू द फ्यूचर? So the answer is that yes, it can.
सो फॉर एग्ज़ाम्पल एवरीडे एग्ज़ाम्पल है इसकी कि अगर आपने किसी आइटम को परचेज़ किया लेकिन आपने इमीडिएटली इंस्टेंटली पेमेंट नहीं दी एंड आपकी एग्रीमेंट हो गई है कि ये आपके पास डिलीवर हो जाएगा, होम डिलीवरी होगी एंड जिस वक्त डिलीवरी होगी फ्यूचर में, चाहे वो उसी दिन लेटर ऑन इन द सेम डे हो या फिर बाद में 1-2 दिन 3 दिन बाद हो या 1 हफ़्ते बाद या 1 महीने बाद, यानी कि आपकी प्रॉमिस हो गई है कि जिस वक्त भी डिलीवरी होगी उस वक्त आप पेमेंट प्रेजेंट कर देंगे इन रिटर्न फॉर दैट item obviously. So in short, consideration can also be in the form of a promise to do something in the future. So I repeat that consideration can firstly be an act or it can be an abstinence, and thirdly that it need not be an act or an abstinence in the present, but it can be a promise relating to an act in the future. So it's not necessary, I repeat, कि कंसिड्रेशन किसी एक्ट के फॉर्म में हो, ये एब्सटिनेंस के फॉर्म में भी हो सकती है। एंड फर्दर ज़रूरी नहीं है कि जो पार्ट ए एंड पार्ट बी में हमने देखा कि एक्ट या एब्सटिनेंस में से कोई एक चीज़ होना लाजमी है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये इमीडिएटली इंस्टेंटली साइमल्टेनियसली उसी वक्त इन द प्रेजेंट मोमेंट ही दिया जाए। ये एक प्रॉमिस भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अभी देखा कि अगर किसी को होम डिलीवरी की प्रॉमिस की जाती है कि जिस वक्त डिलीवरी होगी, जिस दिन डिलीवरी होगी उस वक्त पेमेंट दे दी जाएगी। सो इन शॉर्ट कंसिड्रेशन कैन ऑल्सो बी अ प्रॉमिस विथ रिगार्ड टू एन एक्ट और एन एब्सटिनेंस इन द फ्यूचर। ओके, सो पॉइंट नंबर 2 ये है कि कंसिड्रेशन मस्ट बी एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर। सो बेसिकली कंसिड्रेशन जो है वो प्रॉमिसर यानी कि ऑफरर की रिक्वेस्ट पर होनी चाहिए। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे घर में लेट से गॉड फॉरबिड आग लग जाती है एंड माय नेबर कम्स फॉरवर्ड एंड वॉलंटरीली कम्स टू हेल्प आउट, तो इनकी ये सर्विस के बदले में अगर बाद में ये मुझसे रेम्यूनरेशन यानी कि पेमेंट मांगेंगे तो आई कैन रिफ्यूज़ बिकॉज आई नेवर आस्क्ड माय नेबर टू हेल्प। तो वॉलंटरीली इफ़ माय नेबर इज़ कमिंग फॉरवर्ड टू हेल्प देन इट्स नॉट एट माई रिक्वेस्ट। सो अगर हम रूल नंबर 2 अप्लाई करते हैं इस सिचुएशन में, तो ऑब्वियसली मेरी तरफ से कोई रिक्वेस्ट नहीं थी टू माय नेबर टू कम एंड हेल्प आउट, तो इनकी सर्विसेज जो हैं वो कंसिड्रेशन की तरह काउंट नहीं होंगी बिकॉज दे वर नॉट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द ऑफरर और द प्रॉमिसर एंड आई एम द प्रॉमिसर इन दिस सिचुएशन। Point number 3 is best understood through an example. So let's say there is a person named Arif and Arif ने अपनी बेटी हुमैरा को कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है एंड साथ में ये डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन दिया है कि एक थर्ड पर्सन है नोमान, इसको एक एन्यूइटी देनी है। एन्यूइटी सिंपली मीन्स कि एक फ़िक्स्ड अमाउंट पे करना है साल में, तो साल में एक दफ़ा। तो हुमैरा अग्रीज टू दिस एंड ऑन द सेम डे हुमैरा एक डीड एग्जीक्यूट करती है इन राइटिंग इन फेवर ऑफ नोमान। दिस इज़ द थर्ड पार्टी बेसिकली जिनको कि ये एन्यूइटी पे करेंगी साल में एक दफ़ा। Okay, by the way, before I move on, I just want to clarify that executing a deed in writing, this is simply a legal formality that has to be complied with. तो इस तरह की सिचुएशन में ये लीगल फॉर्मेलिटी को फॉलो करना लाजमी है। लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट कि ये लीगल फॉर्मेलिटी फ़ॉलो की गई थी, उसके बावजूद लेटर ऑन हुमैरा रिफ्यूज़ टू पे द एन्यूइटी। बाद में ये कहती हैं कि नोमान की तरफ से तो कोई कंसिड्रेशन नहीं आई थी, तो आरिफ ने जब अपनी बेटी हुमैरा को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की थी तो उस वक्त वाकई में नोमान की तरफ से तो कोई भी कंसिड्रेशन नहीं आई थी ना हुमैरा की फ़ेवर में। लेकिन ये पॉइंट ये कहता है, थर्ड पॉइंट जो हम समझ रहे हैं अभी, कि द थर्ड पॉइंट सेज दैट द कंसिड्रेशन डज़ नॉट हैव टू बी फ्रॉम द प्रोमिसी ओनली, यानी कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि द कंसिड्रेशन वाज नॉट फ्रॉम नोमान एज लॉन्ग एज कोई कंसिड्रेशन थी। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली आरिफ की तरफ से तो कंसिड्रेशन थी ना। सो द क्वेश्चन is it necessary that the consideration must be from the promisee towards the promiser? The answer is no. The consideration need not be directly coming from the promisee, but it can also be from any other person. So obviously Noman can successfully claim that amount, that is the annuity, from Humaira. And it is irrelevant that the consideration was from Arif to Humaira and not from Noman to Humaira, because according to the rule, I repeat, consideration may be from any other person. It does not have to be from the promisee directly.
Now let's move on to the fourth part of the definition. We already know that obviously consideration can for sure be in the present, यानी कि आपने एक चीज़ ख़रीदी उसी वक्त आपने उसकी पेमेंट कर दी तो ये consideration in the present हो गई। जो पेमेंट आप immediately, instantaneously या फिर simultaneously कर रहे हैं तो वो consideration किस पॉइंट पे है, present में है। However, what is not so obvious यानी कि इसमें जो नई बात है वो ये है कि consideration past से भी relevant हो सकती है and future से भी। So let's see how can consideration relate to the past or the future. So first of all, let's look at an example about how consideration may be from the past. So I'm just going to use the example from the book, that is example number 30. So let's say that Akram has done some sort of service for Wasim and उसने ये service perform की थी in the month of August. Next month September में वसीम अकरम को promise करता है कि उस service के लिए जो कि अकरम ने last month August में की थी उसके लिए वसीम अकरम को promise करता है in the month of September that he is going to give him 10,000 रुपीज़ in return for that service. अब सवाल ये है कि सर्विस तो अकरम ने लास्ट मंथ अगस्त में परफॉर्म की थी लेकिन वसीम ने ये जो कॉम्पनसेट करने की बात की है, प्रॉमिस किया है, वो सितंबर में किया है। Now the question is it okay that the service was actually performed in the past? Because in this situation we can see that this is relating to past consideration. So the answer is that yes, it can. Past consideration is also valid. So past services यानी कि जो previous month में carry out की थी अकरम ने, that counts as valid consideration. So in this situation, Akram can definitely be entitled to the payment of rupees 10,000 from Wasim. And in short, it does not matter that the service was actually performed previously, that is in the past. अच्छा, अब हम एक एग्जाम्पल ऐसा देख लेते हैं फाइनली जिसमें कंसिडरेशन इज़ रिलेटिंग नॉट टू द प्रेजेंट और टू द पास्ट बट टू द फ्यूचर. Now the example that I'm going to give you is example 32 in your book, but please notice that this is not the same point or the same example that we discussed a little while ago when I was explaining point number 1. In this example, the situation, that is the story, is a little bit different. So for example, there is a person named अख्तर and अख्तर promise करता है कि मैं goods यानी कि कोई भी item, कोई भी commodity deliver कर दूँगा to another person and this person is named शोएब. So अख्तर ने शोएब को promise किया कि मैं goods deliver कर दूँगा after 5 days and शोएब कहता है कि okay, आफ्टर 5 days आप डिलीवरी कर दें लेकिन डिलीवरी के भी 5 दिन के बाद मैं आपको पेमेंट करूँगा, यानी कि शोएब promises अख्तर that he is going to pay for those goods 5 days after the date of delivery, that is 5 days from the date of delivery. So obviously in this situation the consideration is not being given in the present, that is simultaneously तो नहीं दे रहा है वो payment, लेकिन instead he is saying that I am going to provide the payment later on, that is 5 days after the date of delivery. तो इस situation में the consideration is future consideration. Okay, so let me quickly summarize what we have learned. Basically, through the use of examples, we have tried to understand the definition of consideration and इस definition को basically simply understand करने के लिए हमने इसको break down कर दिया था 4 parts में and 4 main parts basically ये थे. In part 1, we considered whether consideration has to be in a specific form or not and उस part में हमने देखा कि consideration किस किस form में हो सकती है. अच्छा, part 2 में हमने देखा कि consideration के हवाले से एक requirement है कि it must be at the request or at the desire of the offerer, that is at the desire of the promiser. अच्छा, यानी वॉलंटरी सर्विसेज काउंट नहीं होती हैं. पार्ट 3 में हमने ये देखा कि कंसिडरेशन मे बी फ्रॉम एनी पर्सन, इट डज़ नॉट हैव टू बी फ्रॉम द प्रोमिसी. एंड इन केस यू डोंट रिमेंबर, प्रोमिसी इज़ द वन, द पर्सन हु इज़ एक्सेप्टिंग द ऑफ़र, यानी कि प्रोमिसी की तरफ से कंसिडरेशन का होना लाजमी नहीं है. ये कंसिडरेशन किसी थर्ड पार्टी की तरफ से भी हो सकती है, जो हमने आरिफ और हुमैरा एंड नोमान की स्टोरी में देखा. अच्छा, पार्ट 4 में सिंपली हमने ये देखा कि कंसिडरेशन किसी भी पॉइंट इन टाइम से रिलेट कर सकती है. तो क्या ये ज़रूरी है कि कंसिडरेशन मस्ट बी इन द प्रेजेंट? नो, इट्स नॉट नेसेसरी. कंसिडरेशन पास्ट में से भी हो सकती है एंड फ्यूचर से भी हो सकती है. सो इट्स ओके इफ़ द कंसिडरेशन इज़ नॉट बीइंग गिवन इन द प्रेजेंट but instead it is being given in the future या फिर it has already been given in the past.
Okay, before I conclude the video, let me remind you कि ये main parts थे. Basically there are 4 main parts of the definition, लेकिन first part में हमने देखा था कि it has 3 further subcategories. So in short, according to point number 1, consideration के 3 possible forms हमने study किए. Number 1, consideration किसी act या action के form में हो सकती है, that is you are doing something. Number 2, we saw that consideration can also be not doing something, जिसको कि abstinence या forbearance कहते हैं. And number 3, we saw that consideration can also be in the form of a promise with regard to the future. Before I end the lecture, I would like to clarify the difference between example number 27 and example number 32 in the book. Because in both examples, we have seen that the word future is being used. यानी दोनों examples में future के बारे में बात हो रही है. तो फ़र्क क्या है? देखें, example 27 में the consideration itself is not being given in the future. सो एग्ज़ाम्पल 27 में सिर्फ ये सिचुएशन है कि एक आइटम आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ोन परचेज़ किया, लेकिन आपने उसी वक्त उसकी पेमेंट नहीं दी. आपने प्रॉमिस किया कि जिस वक्त डिलीवरी होगी उसी वक्त पेमेंट दे दी जाएगी, यानी कि प्रॉमिस किया आपने. तो ये प्रॉमिस कंसिडरेशन की तरह काउंट हो रही है, लेकिन वो पेमेंट तो आप उसी वक्त ही देंगे ना जिस वक्त डिलीवरी होगी. तो ये फ्यूचर कंसिडरेशन नहीं हुआ, क्योंकि जो कंसिडरेशन है यानी जो पेमेंट आप दे रहे हैं वो उसी वक्त ही दे दी जाएगी जिस वक्त डिलीवरी होगी. सो जिस वक्त आपकी अग्रीमेंट हो रही है शॉपकीपर से कि वो आपको रेलेवेंट फ़ोन जो भी आपने सेलेक्ट किया है वो डिलीवर कर देगा, उस वक्त आप कंसिडरेशन नहीं दे रहे हैं, आप एक प्रॉमिस दे रहे हैं, फ्यूचर प्रॉमिस, दैट एज सून एज डिलीवरी इज़ डन आई एम गोइंग टू पे फॉर इट. ऑन दी अदर हैंड एग्जाम्पल 32 में जो सिचुएशन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि द आइटम दैट इज़ जो भी प्रोडक्ट ऑर्डर किया गया है वो डिलीवर हो जाने के बाद भी पेमेंट इंस्टेंटली इमीडिएटली साइमल्टेनियसली नहीं दी जा रही है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि 5 days आफ्टर द डेट ऑफ डिलीवरी पेमेंट दे दी जाएगी. Therefore, this is an example of future consideration. So I hope that the difference between the two examples is clear.